I don't know how many of you have joined that Keys to Love वाला जो क्लास था, कीज टू पावर। उसमें से 3 पावर मैंने बोला, एक था लव, एक था ग्रेटिट्यूड, अनदर इज प्ले। आई शेयर्ड ओनली लव लास्ट टाइम, आई थिंक डे बिफोर yesterday मैंने शेयर किया था, राइट? लव शेयर किया था। एंड have you applied? Jojo, I think Suchita was there. Yeah, who else was there? Swagata was not there. Vaishu joined quite late. Yes, others, all of you have not joined day before yesterday. Huh. So maybe then I will post, and please see, they are very important friends. कभी कभी मुझे ना, it's not that कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज्वाइन करो सब, एंड ये ग्रुप बड़ा हो। मुझे कभी कभी लगता है इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड वो दे आर गोइंग टू मिस ट्रांसफॉर्मिंग देयर लाइफ after, because this every topic is like mind blowing, like especially the books that I'm reading right now and I'm sharing with you, they're so mind blowing. Go back to the keys, we have started already with, I've not yet posted, I will post very soon. I try to make sure I post everything on Sundays, जो दो है एक साथ में सब वीडियोस को एक साथ में संडेज को पोस्ट कर देती हूँ। Go back to that. Okay, and I gave a task. So Suchita, have you done any task on how to love, finding ways? Your task was to love whatever you find throughout the whole day. So I was conscious actually while going office. Even today I went and sit for half an hour and taking a like sky, enjoying the sky and greenery and loving them at that moment. And Hmm. also I want to share it was long, still long. I mean, it is in my mind that I have to learn some dance form. I love dancing, Hmm. so I started Bharatnatyam. Though I have, I am heavy on my weight side and Hmm. have some Hmm. physical challenges, but I said I need to try. Whether it is so, it is a self Absolutely. love, you can Even say. I, this is on my mind कि मैं recently फिर से dance start करूंगी, dance and singing. Very good, Please start. Whatever you love, you should start, and also whatever you love, you should yeah, please continue, and then again I will share. Yeah. Bolo. Let me just hear. So, Hmm. yeah, one day at a time or on one moment at a time. Sometimes I feel I put lot many thing or expectation from my side, and when, as Hmm. told you also, then like putting lot of thing in a plate and I could not finish it, and then that conditioning is happened that you can't finish it off. Hmm. So this year when I started 2026, it is very clear health is my first priority. Hmm. If I feel happy, something Hmm. other, because if I am feeling like energetic, I will definitely try to do on my skills or whatever it is in my bucket list. One by one I will start. So this Hmm. dance I started from 6th of January. Then Hmm. you take this self love class, and it was, I can relate. Like, Hmm. I feel every day happy, and now I started doing my trading, educate, like taking a self study on trading as well. So dedicatedly on Lovely. Saturday I'm sitting 2 hours, 10 to 12, Hmm. to start Hmm. with the basic of trading. Okay. So on Just see Saturday I one did. thing, okay? One thing, sometimes it also comes from feeling not good enough. Hmm. Okay? Just see. I'm not saying this is what you do, but कभी कभी when we feel empty and हमको लगता है कि हमको fill करना है अपने दिन को, अपने life को, hmm? Then only I will feel good enough. Okay? If it Hmm. comes out of joy, as for example, I was recently thinking that, I love dance. इन लोगों को पता है कि लाइक ऐसे करती हूँ, मीन्स ऐसा नहीं है कि रोज रोज आनंदिता जैसी, कि वो उसका तो अलग ही स्टेट है, उसको कुछ चला दो वो उसी पे नाचने लगेगी एंड एवरीथिंग, निदान 1 सेकेंड। सो
इवन इफ आई लव डांस बट आई वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टेड कि नहीं नहीं नहीं, मुझे इतना टाइम नहीं देना है इसमें, बहुत कुछ सोचती थी। एंड बट रिसेंटली समवेयर डीप डाउन आई वॉज जस्ट थिंकिंग दैट बिकॉज आई एंजॉय डांस आई शुड गिव इट अ ट्राई, बिकॉज आई लव, आई एंजॉय। मैं जब भी पहले उतरती नहीं हूँ, जब उतरती हूँ तो बहुत मजा आता है मुझे। एंड स्पेशली आई डोंट लाइक क्लासिकल, आई मोस्टली लाइक modern, so I would go for modern. If anything I want to learn, my first preference will be modern. So is it a thought process like that, or is it a thought process ke, you know I think I'm not good enough, या फिर मुझे मुझे कुछ करना है, मुझे बहुत कुछ करना है जीवन में। एंड बहुत कुछ करना है जीवन में ना, नॉट गुड इनफ से भी आता है कभी कभी, इसलिए हम कभी कभी अपने आप को भर देते हैं अपने लाइफ में, with everything to just keep ourselves feel better। अगेन फिर वो जो एक्सटर्नल वैलिडेशन से हो जाएगा, फिर वो क्या होगा, मैं ये कर रही हूँ इसलिए मैं बेटर फील कर रही हूँ, वो कर रही हूँ इसलिए मैं बेटर फील कर रही हूँ, अदरवाइज मैं खुद में बेटर नहीं फील कर सकती हूँ। सो जस्ट सी इफ दैट इज कमिंग फ्रॉम दैट। ओके, Yes, इट्स, yes. आई एम नॉट सेइंग यस एंड Actually, नो, यू हैव टू uh, मेडिटेट एंड सी। ये डीप कॉन्शियसनेस से mm, आता है। ओके, I'll do that. Thanks for this या suggestion. बिकॉज बिकॉज अदरवाइज क्या फिर भी हम फिर भी खाली रहेंगे, लगेगा कंप्लीट नहीं Mm, फील कर रही हूँ, इतना कुछ कर रही हूँ फिर भी क्यों कंप्लीट नहीं फील कर रही हूँ। मेरा ना रिसेंट ऐसा हो रहा है, बिकॉज रिसेंटली आई एम टेलिंग माई सेल्फ आई एम सो होल एंड कंप्लीट ऑन माई ओन। मैं एक ही जगह में अगर 24 घंटे भी बैठी रहूं कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज मुझे माई माई वर्थ इज नॉट डिपेंडेंट ऑन व्हाट आई डू। My worth is dependent on, just because I'm born I'm worthy, just because I'm born I am I deserve the best। वहां से ना एक वो जो दाऊ स्टेट से एक्शन आता है, तब देखना mm, स्पॉन्टेनियस कुछ कुछ चीज करने का मन करेगा, जॉय से, लव से। ओके, एंड देन mm, if even that is 10 things, that is fine, but you have to check whether it is coming from the joy state, दाऊ state, या फिर मुझे करना है I don't feel good enough state। mm, Okay, mm. just I check। will find out. Okay, and my thing is that I cannot take this topic because ये बहुत लंबा टॉपिक हम लोगों ने परसों बात किया, और इतना प्रेशियस टॉपिक है फ्रेंड। बोल रहे कि हर मोमेंट में प्यार को ढूंढो बिकॉज द वाइब्रेशन ऑफ लव इज मैजिकल। वहां पे बोल रहे कि द मोर यू इंटेंसिफाई, द मोर यू, बोल रहे कि प्यार का भी कोई लिमिट नहीं है। प्यार का कोई लिमिट, हमको लगता है ना हम इतना ही प्यार कर सकते हैं, बोल रहे कि प्यार का कोई लिमिट नहीं है, आप जितना प्यार करो, लव एज इफ यू हैव नेवर लव्ड बिफोर। वहां पे बोल रहा है कि कैसे लव करोगे इतना, प्लीज आई रिक्वेस्ट पीपल हु हैव नॉट वॉच ज्वाइंड माय क्लासेस, गो बैक, आई विल वेरी सून पोस्ट इट, कल परसों में ही पोस्ट कर दूंगी, स्पेशली कीज टू पावर लव बोल के टॉपिक जो है, या फिर मैं पोस्ट करके ना मेन ग्रुप में लगा दूंगी संडे को। I keep it posted on Sunday so that people get some time to watch it because they're mostly free on Sundays। So that is what वहां पे बोल रहे कि every moment प्यार ढूंढो। हम क्या सोच रहे हैं, हमको बोलते हैं हम ये, मैं जब ये करती हूँ तो मुझे बहुत आई फील लव, बट इट इज अबाउट मेकिंग श्योर दैट इट इज अ हैबिट। फाइंडिंग लव इज अ हैबिट, अदरवाइज it can also be finding, crisis can also be a habit। ओ मेरा तो बॉस ऐसा है, ओ मेरा तो कंपनी ऐसा है, ओ मेरे कंपनी वाले मुझे इतना परेशान कर रहे हैं मुझे निकाल देंगे। ओके, और यू कैन से I love waking up. I love the drive, that I take to my office. I love, having that, free breakfasts and lunches that they offer. What are the things that you love in your office? Instead of focusing on office में क्या क्या अच्छा नहीं है, can you focus on what? Oh, I love the breakfast. I love the lunch जो free में मुझे मिल रहा है। Oh my God, if it is like, so, finding love बोल रहे कि हम जब love find करते रहते हैं ना, अगर हम इतने इंटेंसली मोमेंट टू मोमेंट प्यार को फील करें तो बोल रहे हैं कि हम हम इंस्टेंटली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हमारा प्रॉब्लम है कि हम लव ही में फील नहीं कर पाते, ज्यादातर टाइम हम क्राइसिस फील करते हैं, ज्यादातर टाइम हम लैक फील करते हैं। सो आई विल नॉट टॉक मोर अबाउट दैट, गो बैक, I have spoken about it so that you go back how important that topic is, you'll know after listening to that video।
आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, वी हैव ऑलरेडी डन इनर चाइल्ड। हमने इनर चाइल्ड बहुत बार किया है और हमको पता है कि इनर चाइल्ड भी कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट कैन ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ 360 डिग्री, बिकॉज वाइब्रेशन मैटर करता है। और हम एवरीथिंग हम क्या करते हैं, हम लोगों से मांगते रहते हैं। प्यार नहीं मिला, इनसे मांगते हैं, उनसे मांगते हैं। रेस्पेक्ट नहीं मिला, बाहर से मांगते रहते हैं। और हमेशा खाली बर्तन, खाली। और बाहर से मांगते रहते हैं, मिलता भी नहीं है, बर्तन हमेशा खाली, हमेशा हम लैक में रहते हैं। हमेशा लगता है मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई रेस्पेक्ट नहीं करता, मुझे कोई टाइम नहीं देता, मुझे कोई वो नहीं देता है। सो what happens is that during childhood, I'm just repeating this small and then I will go into the in depth. Today's topic is intimacy. Intimacy in any area. Inner child traumas can affect intimacy in any area. So, what happens is, बचपन में पेरेंट्स से हमको प्यार नहीं मिला, या फिर कुछ भी चीज नहीं मिला, या फिर मार मिली, पीठ, फिजिकल अब्यूजेस मिले, कुछ भी, ऑल द ट्रॉमास दैट वी वेंट थ्रू ड्यूरिंग इनर चाइल्ड, या फिर पेरेंट्स बोलो, जॉइंट फैमिली बोलो, क्या होता है, सारा चीज जो हमको नहीं मिला है, अनमेट नीड्स बोलते हैं उसको। एक बच्चे का नीड है स्पेशल फील करना। इट इज नॉट अ, बहुत लोग बोलते हैं डोंट थिंक यू आर स्पेशल, इट इज अ रॉन्ग थिंग टू फील यू आर स्पेशल। बट अ चाइल्ड्स नीड इज टू फील स्पेशल। एक बच्चा चाहता है कि उसके पेरेंट्स उसको स्पेशल फील कराए। देर आर सम क्राई, सम डे आई विल पिक अप एंड आई विल स्पीक टोटली ऑन, एकदम पूरा पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊंगी। बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट ये सारे नीड्स थे मुझे। फिर हम क्या करते हैं, हमको लगता है कि हमारे अ, अभी अभी हस्बैंड आ गया है, या फिर दोस्त आ गए हैं। सो इंटीमेसी का क्या होता है, सो नाउ आई विल जस्ट, तो वो चीज जो पूरा नहीं हुआ है, हम अभी हस्बैंड, दोस्त, हाँ, अपने आसपास के लोगों से, अपने बच्चे से मांगते रहते हैं। और फिर हम देखते हैं उससे भी नहीं मिलता है, फिर रोने पीटने लगते हैं। आज का टॉपिक है, इन इन सब चीजों में हमने डिस्कस किया, और हमने डिस्कस किया कि कैसे वही फीलिंग आप खुद के इनर चाइल्ड, यू विल, दैट्स व्हाई आई सजेस्टेड दैट एवरीबडी शुड बी हैविंग अ टेडी बेयर विथ यू। बाय अ टेडी बेयर और एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, थिंकिंग दैट दिस इज योर ओन बच्चा, आपका छोटा 10 ईयर का वर्जन, 14 साल का बच्चा, जो बहुत क्रेव कर रहा था अटेंशन का, प्यार का, स्पेशल फील करने का, रेस्पेक्ट का, अबंडेंट नहीं फील करने का, वो सब कुछ जो वो बच्चा नहीं मिला उसको, आप उस बच्चे को आप वो दोगे, आप उसको पकड़ोगे और उसको बोलोगे अब से मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी, अब से मैं तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगी। उनमें से सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मैंने बहुत कुछ, इनर चाइल्ड हमारा वास्ट टॉपिक है, हमने बहुत बार इनर चाइल्ड में बात किया है। आज का इनर चाइल्ड का टॉपिक है इंटीमेसी। इंटीमेसी कैन बी एनीथिंग। Intimacy can be not just with partners. Intimacy can be with friends. Intimacy can be with in-laws. शादी हुई है, in-laws से, I'm not talking about deep intimacy, that is physical intimacy जो only partner के साथ हो, but बहुत एरिया में हम इंटीमेट नहीं हो पाते। आपने देखा कि फ्रेंडशिप भी शैलोज होने लगे हैं आजकल, हम बहुत ज्यादा डीप नहीं जा पाते। ओके, इंट जो, आई हैड अ क्वेश्चन फ्रॉम समबडी कि मैं डरती हूँ दोस्त बनाने से, मुझे डर लगता है, पास्ट याद आ जाता है। ओके, पास्ट याद आ जाता है। पास्ट या तो बचपन में पेरेंट्स से मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है पेरेंट्स ने नहीं दिया है आपको। ऐसा भी हो सकता है कि आपका खुद का कुछ दिन पहले का पास्ट भी हो सकता है, उसको भी आप इनर चाइल्ड, आपसे एक दिन भी छोटा सेल्फ जो है वो भी आपका इनर चाइल्ड ही है। 1 साल पुराना जो आपका सेल्फ है, बैक, ए वन ईयर यंगर टू यू राइट नाउ, इज ऑल्सो योर इनर चाइल्ड। सो एज फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि आपका, एज फॉर एग्जाम्पल, रिलेशनशिप्स बहुत गंदे रहे हैं, पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप्स, या फिर पास्ट में आपके खुद के जो बॉयफ्रेंड्स थे, गर्लफ्रेंड्स थे, पार्टनर्स थे, या फिर एक्सेस थे, उनके साथ भी आपके रिलेशंस बहुत बुरे रहे हैं। सो उससे क्या होता है, पेरेंट्स बोलो या ऐसे सिचुएशंस बोलो, एक टाइम के बाद आपको क्या होगा, आपको ना एक, हमेशा, बिकॉज दीज काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स, कभी कभी पेरेंट्स आप करते हैं ना आपके साथ,
कि कुछ कुछ पेरेंट्स हैं जिन्होंने आपको लगातार प्यार नहीं दिया है, आपको बोलेंगे कि तुमने ये किया है तो तुम्हारे साथ मैं बात ही नहीं करूंगी, तुम डिजर्व नहीं करते हो, पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं ना, डिजर्व नहीं करते हो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, बात मत करो। और फिर हम क्या करते, ओनली वंस आई डिड इट विथ रिदान। बहुत उसने कुछ ऐसा किया था जो जो मुझे बहुत, आई फेल्ट वेरी शेमफुल, ही डिड समथिंग इन पब्लिक एंड मुझे बहुत बुरा लगा कि ऐसे क्यों किया रिदान ने, एंड मुझे बहुत बुरा लगा था, बहुत लंबा पुराना बात है। मैं आई वॉज सो अपसेट कि ना, इंटेंशनली नहीं, लेकिन मैं अपसेटनेस से ना एक दिन मैंने उसके साथ बात नहीं किया, बिकॉज आई वॉज वेरी हर्ट कि यू नो मुझे ऐसे सिचुएशन में डाल दिया रिदान ने। होता है ना कभी कभी बच्चा ऐसा कुछ बात कर देता है सबके सामने जो बहुत खराब लगता, बहुत साल पहले की बात है। मैंने एक दिन उसके साथ बात नहीं किया था, वो भी इतना सोच समझ के नहीं, बट आई वॉज जस्ट सो हर्ट आई कुड नॉट स्पीक। many years, not many years, 1 year later I did some therapy on him. I mean, I was just, वो थोड़ा कुछ किसी और चीज में प्रॉब्लम था, तो मैंने बोला कि अच्छा रिदान चल चेक करते हैं। I I I took him into meditation, into therapy, hypnosis and everything. तो यू नो ये छोटा सा बच्चा, मुझे लगा एक एक दिन है, बात नहीं किया, क्या फर्क पड़ता है, मैं भूल भी गई, क्योंकि उसके बाद मैंने उसको बहुत प्यार व्यार किया, बहुत कुछ किया। लेकिन 1 साल बाद जब मैंने थेरेपी की रिदान पे, रिदान किसी एक प्रॉब्लम को उसके साथ कनेक्ट करके, बिकॉज थेरेपी में क्या होता है, हिप्नोसिस में टेक यू टू सम पास्ट मेमोरी। तो रिदान, उसके पास्ट मेमोरी में ये था कि मेरी मम्मी ने मेरे साथ 1 या 2 दिन बात नहीं किया। मैंने बोला, वो बोला कि मैं बहुत ज्यादा, आई फेल्ट वेरी, हर्ट, आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मुझे मुझे समझ में नहीं आ रहा था, एंड वो बहुत रोया। हिप्नोसिस में यू अलाउ द चाइल्ड टू क्राई ऑल्सो, और द पेशेंट और द पर्सन टू क्राई, कि तुमको कैसा लग रहा है वो तुम फील करके रो। एंड ही वॉज हाउलिंग एंड क्राइंग। मुझे लगा एक छोटी सी बात है, 1 या 2 दिन ऐसा था कि थोड़ी अपसेट थी, इतनी छोटी सी बात, और वो पूरा, ही वॉज हाउलिंग एंड क्राइंग कि मम्मी आपने मेरे साथ बात नहीं किया। आप एक बच्चे को, इफ यू रिमेम्बर, देर इज दिस मसाटो, देर इज दिस एक्सपेरिमेंट, आपने सुना है वाटर एक्सपेरिमेंट, कभी सुना है आपने? मैं कभी आप लोगों को यूट्यूब में याद करवाना, कल, ट्राई टू ज्वाइन अर्ली, आई विल शो यू द एक्सपेरिमेंट ऑफ दैट पर्सन। Okay, try to join bang on time before we do the breath work. That experiment shows कि वो आदमी ने एक्सपेरिमेंट किया पानी पे, कि पानी को अगर तुमको बोलो ना आई हेट यू, तो वो पानी का ना बहुत गंदा एक फॉर्म ले लेता है। आप उसको कंटिन्यूअसली बार बार बोलो ना पानी को, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, और आप माइक्रोस्कोप के अंदर उसको, उसने देखने का कोशिश किया, इट वॉज जापानीज, इट्स अ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, और उसने देखा कि पानी का शेप बहुत गंदा हो गया। और एक पानी में क्या हुआ कि उस पानी को उसने बार बार बोला आई लव यू, आई एम सो, आई लव यू, आई लव यू, और वो पानी का शेप ना एकदम क्रिस्टल जैसा, स्टार जैसा फॉर्म हो गया, ब्यूटीफुल एक शेप लेके वो पानी, वो पानी का, जब आपने, हम लोगों ने, मीन्स साइंटिस्ट ने देखा, इट बिकेम ब्यूटीफुल शेप। सो फ्रॉम दिस एंड देन फ्रॉम देयर ही ऑल्सो डिड राइस एक्सपेरिमेंट, राइस को फर्मेंट करने का कोशिश किया, 3 बॉल्स में राइस को फर्मेंट किया। एंड आई, when you will see, I will remember also the whole of it, I still don't remember the whole of it, but the thing was that जिस राइस को उसने, राइस फर्मेंट किया, और फर्मेंटेशन में क्या किया, एक राइस को उसने बोला कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम बुरे हो, आई हेट यू, आई डोंट लाइक यू एंड एवरीथिंग, तो वो राइस ना रॉट होने लगा। ओके, रॉट होने लगा, मीन्स स्टेल स्टेल स्मेल कर, इतना भी रॉट नहीं हुआ बट रॉट हो रहा था हल्का हल्का। एक राइस था जिसको उसने बोला आई लव यू, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू एंड एवरीथिंग, वो ना राइस और ज्यादा ब्यूटिफुली फर्मेंट होने लगा, इतना सुंदर स्मेल हो रहा था राइस से, ब्यूटीफुल फर्मेंटेशन का स्मेल आ रहा था। और एक राइस था जिसको उसने कुछ नहीं बोला, जस्ट इग्नोर कर दिया, इग्नोर कर दिया, बोला कि यू नो मुझे बात भी नहीं करनी है तुमसे, आई जस्ट फॉरगेट इट, इग्नोर्ड। You won't imagine the rice which was ignored, that was the worst rice that happened to the
द थ्री एक्सपेरिमेंट्स दैट हैपेंड। इसीलिए बोलते हैं ना, बच्चे को हम जब इग्नोर करते हैं सबसे ज्यादा, बच्चे को आप डांट भी दो, आपको कुछ बोल भी दो तो कुछ नहीं फर्क फर्क पड़ता है, लेकिन एक बच्चे को आप जब इग्नोर कर देते हो ना, सबसे ज्यादा इफेक्ट उस बच्चे को पड़ता है। हम जब बच्चे को इग्नोर करने लगते हैं, मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, इट्स ओके, वी आर नाउ इन दिस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, मोबाइल लेके बैठेंगे, but we also have to be very aware there is a kid down there doing something on his own. He needs my attention. I cannot keep ignoring him. Once in a while I can take care of myself, but I also have to make sure that he's taken care of. Okay, so बोलने का रीजन ये था कि what we do, it actually creates our फ्यूचर। हमने बचपन में, हमको लगता है कि बच्चे को ऐसा कुछ एनवायरनमेंट दिया, कुछ दिया, बच्चा तो है, हम लोग क्या बोलते हैं, बच्चा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, दे विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी फाइन। बट इन रियलिटी नहीं, यू हैव सीन दिस, यू हैव सीन माई ओन एग्जाम्पल विथ माई ओन सन। उसके बाद से मैंने आज तक कभी भी रिदान को मैंने देखा कि ओ माई गॉड, इतना इफेक्ट करता है मेरे बच्चे पे। मैं और कभी भी मैं उसको डांटने के बाद भी, डांटती भी हूँ तो 5 मिनट में आई जस्ट ट्राई टू पैच इट अप। आई डोंट स्ट्रेच इट इवन फॉर एन आवर और 2 आवर। मुझे लगता है उसको लगेगा कि मम्मी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, अबैंडन कर दिया। दिस इज हाउ चाइल्ड्स ब्रेन वर्क। सो सी, इमेजिन नाउ, हमको तो वैसा नहीं मिला, हम इतने एडुकेटेड नहीं थे, हमने इतना कुछ सीखा नहीं है, तो हमारे साथ कितना कुछ गड़बड़ हुआ है हमारे साथ। ओके, तो एक जो प्रॉब्लम हमारे साथ होता है वो है इंटीमेसी प्रॉब्लम। इंटीमेसी प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हमको प्यार भी अनप्रेडिक्टेबल वेज में मिलता है, जैसे आज मिला कल नहीं मिला, या फिर यही जो चीज मैंने आपको बोला कि तुमने ये किया, तुम मेरे साथ बात नहीं करना, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू एनी मोर, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी लेकिन मैं बात नहीं करना चाहती हूँ। तो एक बच्चा जब अनप्रेडिक्टेबल, वो जो प्यार आ रहा है वो प्रेडिक्टेबली नहीं आ रहा है, वो कंटिन्यूअसली नहीं आ रहा है, वो अनप्रेडिक्टेबल है, आज आ रहा है कल नहीं आ रहा है, फिर से मम्मी गुस्सा कर दी, आज मम्मी मुझसे प्यार नहीं कर रही है। ओके, या फिर मम्मी खुद के लाइफ में इतनी सैड है कि उसके पास टाइम नहीं है, मुझे आई एम लेफ्ट अबैंडन्ड, वो खुद से खुद के साथ ही बिजी है, मैं अकेला बैठा हुआ हूँ। सो ऐसे बच्चे को क्या होता है, अनप्रेडिक्टेबल लव जब उसको मिलता है, दे स्टार्ट फीलिंग अनसेफ। अनसेफ एक फीलिंग नेचुरल बॉडी में आता है। ओके, सो व्हेन दैट पर्सन फील्स अनसेफ, दैट पर्सन ग्रो होके क्या करेगा, उसको हर चीज में अनसेफ फील होगा। This is one way of making a person start having the trauma of intimacy bond. Okay, I'll tell you what happens. Okay, जब बड़ा होता है तो क्या होता है। फिर और एक जो चीज होता है बच्चे के साथ, हम जब बच्चे को बहुत ज्यादा शेम और गिल्ट देते हैं ना, तुम ऐसी हो, तुम बुरी हो, तुम मर क्यों, कभी कभी हम कभी समझ में नहीं, या नहीं आता हम क्या बोल रहे हैं, बोल देते तुम मर क्यों नहीं जाता है, तू इतना बुरा है, तू इतना बात नहीं सुनता है, एंड वी आर टेलिंग ऑल दिस थिंग्स। सोचो हमारे टाइम में तो फिर भी वी आर सो सोबर, वी आर सो थॉटफुल, वी मेक श्योर वी आर वेरी केयरफुल व्हाट वी टॉक टू आवर किड्स। एंड इफ यू हैव नॉट, प्लीज आफ्टर ऑल दीज वट एवर आई एम ट्रेनिंग यू, मेक श्योर कि आप बच्चे के साथ अच्छे से बात करो। बिकॉज हम जब बच्चे को शेम देते ना, हमको लगता है कि हम शेम देके बच्चे को फर्स्ट फर्स्ट वो फर्स्ट आ जाएगी, शेम देंगे, गिल्ट देंगे उसमें, या फिर कुछ तो बोलेंगे तुझ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, फोकसिंग ओनली ऑन व्हाट इज बैड इन द किड, नॉट फोकसिंग ऑन व्हाट इज गुड इन द किड। हम अप्रिशिएट नहीं करते बच्चे को, बार बार उसको बार बार बोल रहे तू ये ठीक से नहीं करता है, तो वो ठीक से नहीं करता है, तो पढ़ाई भी ठीक से नहीं करता है, उसके बच्चे को देख वो कितना अच्छा है, एवरीथिंग। सो व्हाट्स हैपनिंग इज दैट द चाइल्ड इज हैविंग अ लॉट ऑफ शेम एंड गिल्ट। वो इतना शेमफुल है, तो वो जब बड़ा होता है ना ऐसा बच्चा, या फिर अभी चाइल्ड छोड़ो, ओके, ये तो बच्चा है, अगर आपके एक्सेस ने भी, अगर आपके एक्स, मेनी पीपल हैव एक्सेस आल्सो, इट्स नेचुरल, बहुत लोगों ने शादी थोड़ी लेट की, 30, उसके पहले आपके एक्सेस रहा कि थे, आपके बॉयफ्रेंड्स थे, गर्लफ्रेंड्स थे, वट एवर, अगर आपके उन्होंने भी आपके साथ ऐसा अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर किया है, हम्म, आपको प्यार नहीं दिया है, आज दिया है नहीं दिया है, एक टाइम को पे आपको लगा है कि अरे आपको लगा कि अरे एक्चुअली प्यार नहीं करता है, फालतू का खेल रहा है आपके साथ, बहुत कुछ होता है ना, मेनी थिंग हैपेंस इन लव लाइफ ऑफ एवरीबडी। एक टाइम के बाद फिर शेम गिल्ड, अगर
कोई था जो आपके चेहरे को लेकर बोलता था तुम सुंदर नहीं हो, तुम ये करो तो और अच्छा लगोगी, तुम ऐसी क्यों हो, तुम मोटी क्यों हो। प्यार भी कर रहा है, दिखा रहा है वो आपका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, लेकिन आपकी नुक्स निकाल रहा है, शेम और गिल्ट में आप जा रहे हैं कंटिन्यूअसली। ओके। सो इससे क्या हो रहा है कि अच्छा वो तो हो गया, आपका पेरेंट्स भी चले गए हैं, आपके एक्स बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स आपके एक्स पार्टनर्स भी चले गए हैं। आप जब नेक्स्ट आप किसी के साथ बनाना चाहते हो, वेदर इट इज अ पार्टनर और फ्रेंडशिप, हम तब ना अपना पास्ट पास्ट अनसेफ फीलिंग लेके आ जाते हैं, यू नो। शायद वो इंसान, वो फ्रेंड आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत बहुत प्यारी है, बहुत इनोसेंट है। सारे सारे विमेन तो गॉसिपर्स नहीं है, राइट। कुछ कुछ विमेन बहुत अच्छे भी है, बट सारे पार्टनर्स तो रेड फ्लैग्स वाले नहीं हैं। कुछ कुछ पार्टनर्स बहुत अच्छे हैं, दे हैव कम हियर टू रियली लव यू विथ ओपन हार्ट। बट क्या होता है, हमको लगता है कि सेफ नहीं है, और हम क्या करते हैं, आप देखना रिलेशनशिप्स में, दोस्ती बोलो, इन लॉज के साथ रिलेशनशिप बोलो, या फिर पार्टनर्स के रिलेशन साथ रिलेशनशिप करो, हम तब सेल्फ सैबोटाज करते हैं रिलेशनशिप को। अच्छा लग रहा है, दूर से अच्छा लगता है, अरे हाय कैसी हो, नेबर को बोल दिया, ओके, कैसी हो तुम, ठीक हो, एंड एवरीथिंग, ओके। एंड वो भी बोल रही है कि हाँ घर आ जाओ कभी, एंड सब ठीक है। वो भी अच्छे है, ऐसा नहीं कि गॉसिपर्स है, टॉक्सिक पीपल एंड एवरीथिंग। और या फिर कोई दिल दे रहा है आपको कोई आदमी, एंड आपके पास आने का कोशिश कर रहा है, वो ना दूर से आपको अच्छा लगेगा। लेकिन आप ना मोमेंट आपको लग रहा है कि अरे ये तो बहुत क्लोज हो रहा है, बहुत क्लोज हो रहा है, बहुत क्लोज हो रहा है, अभी बहुत डीप इंटीमेट फ्रेंडशिप होने वाला है, या फिर इंटीमेट इंटीमेट लव रिलेशनशिप होने वाला है, आप डरोगे उस बॉन्ड से। आपको लगेगा सेफ नहीं है, सेफ नहीं है, डीप डाउन सेफ नहीं है। क्यों आपको लगेगा, प्यार तो मुझे कभी भी पूरा नहीं मिला है ना, आता है जाता है, ये भी चला जाएगा, ये भी मुझे प्यार नहीं देगा, ये भी मुझे छोड़ देगा, मम्मी जैसी मुझे 4 दिन 5 दिन के लिए जैसे मम्मी ने बात नहीं किया, ये भी मुझे छोड़ देगा, इससे पहले तो मैं ही छोड़ देती हूँ उसको। या फिर फ्रेंडशिप में भी शेम गिल्ट इतना मिला है, तो आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा कि ये लोग मुझे जज ही करेंगे, ये लोग मुझे क्रिटिसाइज ही करेंगे, करने के पहले आपने बिलीव कर लिया कि ये लोग माय गॉड गॉसिप करेंगे मेरे बारे में, उससे तो अच्छा मैं फ्रेंडशिप ही ना करूं, हट जाऊं। सो द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ ब्यूटिफुल लव अफेयर, द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ ब्यूटिफुल फ्रेंडशिप विथ पीपल इज गॉन। और तभी ऐसे लोग इतने अकेले, ज्यादातर लोग इन दुनिया में, देखो देर इज वन ऑफ द रीजन आई टोल्ड यू, मेक श्योर दैट योर एनर्जीज आर प्रोटेक्टेड। दैट्स व्हाई यू शुड नॉट बी मेकिंग फ्रेंडशिप विद एवरी टॉम डिक एंड हैरी। किसी से भी नहीं बात करना है, किसी से भी है करना नहीं है, बिकॉज एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स प्रेशियस। एट द सेम टाइम, ट्रॉमा में रह के एक अच्छा दोस्त आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाह रहा है, फिर भी आप नहीं कर रहे हो, और सेल्फ सैबोटाज कर रहे हो डर के मारे। और सेल्फ सैबोटाज हम बहुत तरीकों से करते हैं, इसलिए बहुत लोगों को ना कमिटमेंट फोबिया हो जाता है, रिलेशनशिप फोबिया हो जाता है, फ्रेंडशिप फोबिया हो जाता है। फ्रेंडशिप नहीं करना चाहते डर के मारे, कमिटमेंट नहीं देना चाहते डर के मारे, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग इज रॉन्ग विद दैट पर्सन, इट इज बिकॉज वो इतना ट्रॉमा से गया है पास्ट में, उसको लगता है सेफ नहीं है, कोई भी रिलेशन सेफ नहीं है। Okay, Vaishu, did you get it? So, what we need to do is we have to give our inner child safety. अभी हमको इनर चाइल्ड को बोलना है कि बहुत हो गया, आपने बहुत दूसरे लोगों से आपने मांगा है, आपको नहीं मिला है, मिला नहीं है, मिला हो अच्छा है, मिले ना मिले तो अच्छा, बहुत अच्छा, ना मिले तो भी अच्छा, क्योंकि अब से मैं अपने इनर चाइल्ड को सब कुछ जो मेरा इनर चाइल्ड चाहता है मैं उसको दूंगी। सो आज का जो क्लास है वो हम क्या किस पे करेंगे, हम इंटीमेसी पे, हम इनर चाइल्ड काम करेंगे। इंटीमेसी पे कैसे, जैसे मैं अपने इनर चाइल्ड क्यों क्लोज नहीं होना चाहता है अपनी दोस्तों से, अपने पार्टनर्स से, अपने बाकी रिलेटिव्स जो है इन लॉज से, क्यों इंटीमेट नहीं होना चाहता है, बिकॉज वो सेफ नहीं करता। सो वी विल टेल आवर इनर चाइल्ड दैट इट इज सेफ फॉर यू टू लव, यू आर सेफ, यू आर सेफ।
Okay, the more the inner child feels safety, that I will take care of you, I will make sure that I will keep you safe wherever you go, I will keep you safe, whatever relationship you make, I will be there to keep you safe. Nobody else, किसी से मैं सेफ्टी नहीं मांगूंगी, मैं तुम्हें अभी सेफ फील कराऊंगी, मैं तो क्योंकि क्यों फील कराऊंगी, क्योंकि दोस्त आएंगे जाएंगे, हाँ, हस्बैंड, पार्टनर्स, बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, ये भी आने जा सकते हैं, लेकिन मैं तो तुमसे दूर नहीं जाऊंगी, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। उससे क्या होगा, कंटिन्यूअसली जब वो सेफ फीलिंग आपके बॉडी में आएगा, द वाइब्रेशन ऑफ से, इट इज सेफ टू लव, इट इज सेफ टू you know get into beautiful relationship, friendships, or anything, it is safe. So when that safety I give it to my inner child, you will see your life opens, and your life starts opening to have beautiful relationships in your life. ओके, जहां पे दे हम, क्या होता है कि हम सारे दरवाजे बंद कर देते डर के मारे, एक ने आपके साथ क्या किया है, उससे क्या करते हैं, सबसे अच्छा दरवाजा मेरे जीवन में आ रहा है, उसको भी मैंने बंद कर दिया डर के मारे कि ये भी मेरे साथ वो ही करेगी, मुझे छोड़ देगी, अबंडन कर देगी, ये भी मुझे दर्द देगी, मुझे क्रिटिसाइज करेगी। अरे क्रिटिसाइज ऑल्सो समटाइम्स इट इज नेसेसरी, प्यार से भी क्रिटिसिज्म आता है ना, हम जिससे प्यार करते हैं हम उसी को तो क्रिटिसाइज करते हैं, हम एरे गहरे को क्रिटिसाइज नहीं करते, मुंह पे अगर करते हैं तो। So when we start seeing even criticism as a beautiful way of showing love, yeah, acha, it's criticism. Healthy criticism is like that person loves me. That's why the person is trying to criticize me. We will then start feeling safe, and उससे हमारा life बहुत change होगा. Okay, I think it is many of you, even for Ria. Okay, Ria, did you get it, Babu? Okay, so this is how we are going to have Yeah, Didi. beautiful. This is how we can have beautiful relationships everywhere. Let's start the inner child process.